Hello, and welcome back to the Mid Wicket. Finally, we are at that stage जहाँ पे हमें अपनी टॉप 4 टीम्स पता है, जहाँ हमें Yes. अपने टॉप 4 बेस्ट नेशंस टू फाइट फॉर द कप पता है. ठीक है भाई, Deserving, शाउट I आउट्स guess. टू द शाउट आउट टू द अफगानिस्तान टीम हु ट्राइड देयर बेस्ट. शाउट आउट टू कुदरत के निजाम जो हो ही नहीं पाए एंड एवरीथिंग एल्स. लेकिन यू आर जस्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ. यू आर पार्ट Yep. ऑफ द वर्ल्ड कप. नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर. Top 4 teams: India, South Africa, Australia, and New Zealand. This is the order they have finished in, and we also know our semi-final ke fixtures. India versus New Yes. Zealand for the first semi-final, and second In that group. semi-final will be your Australia versus South Africa in Yes. Eden Gardens. Right? एक बार टॉप फोर फिर से बोल दो चिराग. India, South Africa, Australia, and New Zealand. कौन सी टीम नहीं है इसमें? Pakistan and England, the team I said जो नहीं होगी. हाँ. Yeah. Makes sense. Ah, but talking to the what we decided ki एक SWOT analysis. Let's start with the bottom team, the team that has Yes. finished fourth. I should not be saying bottom team because इनका असली potential निकलता ही knockouts में. नॉकआउट्स में सुशांत, अगेंस्ट इंडिया निकलता है. और भाई मैंने आज सुबह एक वीडियो देखी है मस्त जो मेरे को फाड़ के रख रखी है. वानखड़े में चेजिंग टीम हमेशा कोलैप्स कर रही है, फुटबॉल मैच खेल रही है. हाँ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है. समझ रहे हो मैं कहा जा रहा हूँ? 2019 की याद आ रही है वापस से. मतलब हर नहीं आ बार रही, मेरे को तो 2019 घूमता है बार बार कि नहीं आ रही चेजिंग भाई, के नहीं आ रही, वक्त इंडिया नहीं फुटबॉल आ मैच रही, खेल रही है. नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही. I'll tell you. जब इंडिया पे डिस्कस करेंगे then I'll come to that. Coming to the ओके. SWOT analysis, Shans, quickly, what were your strengths and weaknesses for this team? जो आपने इस ग्रुप स्टेज में देखा हो. My strength for New Zealand would have been that their players, especially in batting, have been very reliable. मतलब I think it's the first time I'm like very confident about New Zealand batting, and उतना ही I'm underconfident about their bowling. They have been fucking up a lot. So strengths में मेरे लिए again my favorite player Rachin Ravindra and Kane Williamson. Kane Williamson has been playing really brilliantly the moment he has stepped up on the pitch. You have your Mitchells, Daryl Mitchells, amazing. I think they still need a good opening stance. उनका ओपनिंग स्टैंड अभी भी कॉन्वे इज गिविंग देम द स्टैंड बट इतना अच्छा नहीं दे रहा है. ही इज नॉट ब्रिंगिंग अप द अग्रेशन एज अदर्स एंड नॉट इवन स्टेइंग देयर टू फुलफिल हिज पोटेंशियल. तो बट मेरे लिए वीकनेस स्ट्रेंथ्स का थोड़ा मिक्सचर ये हो गया. बॉलिंग के आई हैव टू मेंशन स्टार्टिंग के पावर प्लेस में विकेट्स मिसिंग है. एंड इंडिया में अगर तुम्हें वर्ल्ड कप जीतना है यू जस्ट कैन नॉट हैव दैट. बोल्ट एंड सऊदी यू आर गाइस आर नॉट डूइंग योर जॉब्स टू अप टू द मार्क. सो Like if I या. have to count on the strengths starting में, first name that should come to everybody's mouth should be Rachin Ravindra. Find of the tournament, if not the best player of the tournament अभी तक. The guy has proven कि वो क्यों Bangalore born है and the way he has played. Then comes Yes. your one strength that सब लोग नहीं ध्यान दे रहे is without Kane Williamson as well. The way Yes. this team has played. Kane Williamson is the कुछ भी हो, कितना ही अच्छा कोई भी प्लेयर खेल ले, be it Daryl Mitchell हो, Santner हो, रविंद्र हो, Kane Williamson is your top-notch guy, is your first name of the team when you have to discuss on sheet. But उसके बिना भी the way you have performed, I am really impressed with what you guys have done. Coming on to भाई Santner, he showed कि ये इंडिया में वर्ल्ड कप है तो आपको स्पिन चाहिए ही चाहिए, ऑलराउंड एबिलिटी चाहिए. Fielding has been the greatest strength, and the middle order goes a bit underrated, but the way ये Mitchell, your Conway कह रहा हूँ, sorry, Phillips and everybody performs in the middle, okay, they have been excellent in the things they have been doing. Even the substitutions have been working really brilliantly, by the way. Yeah, Like नीशम आया था एक मैच में, उसने बैटिंग में अपना दिखा दिया कि मतलब भाई if Will Young आ रहा है वो भी परफॉर्म कर रहा था. They have that proper squad. लेकिन yeah. bowling is my concern. Saudi True. and Bolt and Ferguson and Matt Henry चलो अब चला भी गया है, लेकिन everybody, each bit of them, I have not seen the पोटेंशियल जिससे आप डाल सकते हो. ठीक है भाई, यू हैव बीन अमंग द विकेट्स, यू हैव बीन अमंग द पेसी नेचर जो तुम डालते हो, लेकिन आई हैव स्टिल नॉट सीन मच फ्रॉम यू. मे बी सी आई माइट बी ब्लाइंड साइटेड बाय द टीम जिसे आप फेस करने वाले हो, कि मुझे बुमराह, शमी और सिराज ने इतना ही दिखा दिया कि सब मुझे उनके सामने मिनोज लग रहे हैं, लेकिन स्टिल आप अपने पोटेंशियल पे नहीं थे. They have been मेरे a को नहीं very देखना वैसे, अब मेरे को देखना ही नहीं इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी. उनका पोटेंशियल नहीं देखना मेरे को. अरे पोटेंशियल, क्योंकि आप एक पाकिस्तान का गेम उठाओगे, यू आर नो वे लूजिंग दैट गेम आफ्टर स्कोरिंग अ 400. ठीक है यार, डीआरएस हो गया, एवरीथिंग हो गया, लेकिन स्टिल आप उस गेम में मेरे हिसाब से पाकिस्तान आगे होती द वे फकार जमान वाज प्लेइंग. तो
I believe वहाँ उनकी weakness है, and opportunity and threat ज़्यादा क्या ही बोलूँगा. Opportunity is you can go into the final, threat is you lose out on the finals. tournament. लेकिन Yeah. talking about the opportunity, this might be the time when finally New Zealand एक ऐसी टीम है जो I believe is a team जिसके लिए एक वर्ल्ड कप वो डिजर्व करती है 50 ओवर एटलीस्ट. दे डिजर्व दैट एंड मे बी दिस कुड बी द टाइम फॉर दैट. लेकिन wearing this jersey, this just does not give me the time to say that. My prediction is they are going down in the semis. Yep. Just because तुम मुंबई में खेल रहे हो and मुंबई में players like Bumrah and Rohit have been eating that pitch for long. Phenomenal. Yeah. So that is the only concern for me कि अभी भी जो holes है ना वो मुझे आपके opponents में नहीं दिख रहे हैं. That is the reason I am putting you out कि you are not the favorites entering into the Mumbai. Exactly. Yeah. That is Shreyans, moving true. on to the third team. Who's your team? मतलब what's your strength and weaknesses for Australia? One team जिसको Strength. लोगों ने बोल दिया था भाई ये तो top 4 ही नहीं जाएगी after first 2 games. Yeah, that team, please. So yeah, Australia के लिए I don't know. I understand that their players have been showing individual brilliances. Although I'm yet to see a match where every aspect is just ticking. कि मतलब भाई bowling अच्छी, batting अच्छी, fielding अच्छी. अभी तक मेरे को अब तुम बोलोगे कि ये मैच वो मैच नहीं भाई. मेरे को ऐसा मैच नहीं दिखा है जहां पर स्टार्क ने पावर प्ले में आकर विकेट्स लिए और डेविड वार्नर ने उसी मैच में ही थप्पड़ वप्पड़ ही मारे हो. ठीक है, नहीं हुआ ऐसा. आई स्टिल बिलीव डेविड वार्नर का फॉर्म जो लोग बहुत ओवररेट कर रहे हैं अभी. डेविड वार्नर का फॉर्म हो गया, स्टीव स्मिथ का फॉर्म हो गया. द ओनली एंड टू बी ऑनेस्ट मैक्सवेल का फॉर्म भी मैं बोलूंगा कि ओवररेट कर रहे हैं लोग अभी. नहीं यार मैक्सवेल ने Although he has shown his दो yeah, उसने जो कर रहा है वो it is godly, I understand, but to recreate it in such high intensities is very difficult. मतलब वही पॉइंट है कि वो 2 इनिंग्स इतनी मास्टर क्लास रही हैं कि you have to look into account बाकी 5 इनिंग्स भी. That is what you can Yeah. say. कि 2 इनिंग्स तो बहुत ही बढ़िया रही हैं लेकिन बाकी 5 इनिंग्स में क्या. बाकी 5 भी मतलब जब उसको एक मैच if I'm remembering कि I think न्यूजीलैंड वाला ही मैच था जहां पर उसको थोड़ा ऊपर भेजना था और वो फेल कर गया था. हाँ फर्स्ट बॉल आउट हो गया था, वही था ना गेम. फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया था. सो न्यूजीलैंड था कौन सा अगेन था. दिस ऑस्ट्रेलियन टीम shows me a little bit of इंडिया का वो साइड कि पहले वाली जो इंडिया थी it can collapse any day and I still believe this Australia team can collapse any day. चल ठीक है, वीकनेस हो गई. What's your strength for this team? By individual brilliance, as I have been saying, individual brilliance, they are a World Cup. मतलब वही जैसे रियल मैड्रिड के लिए बोलते हैं, these are also the Australian team ऐसी है कि नॉकआउट्स में वर्ल्ड कप्स में you just cannot count Australia out no matter what. So मेरे लिए स्ट्रेंथ यही है कि वो ऑस्ट्रेलिया है, वो स्ट्रेंथ है इनकी, ये ऑस्ट्रेलिया है. The name is enough. देख if I start talking about Australia ना, मैं तेरे लास्ट कमेंट से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा कि this is a very anti-Australian team that I have seen. Being honest, Understandable. this tournament has been a very anti-Australian kind of a tournament. जो इनकी एक harshness रहती थी in their decision making, in their team selection, वो इस बारी नहीं थी. They have gone with the emotions somehow. I don't know how. They have gone with the emotions. And तू अगर देखेगा talking about their strengths, coming on to their strengths, वार्नर तेरे लिए it has been a bit iffy, but मेरे हिसाब से on his day he is unstoppable. So I believe, and Warner is capable of putting that days again and again on Indian pitches especially. Warner has that with him on Indian pitches. So I am putting his in Warner as my strength. Warner मेरे लिए एक strength है for this team. Their middle order clicking somehow in form of Maxwell. Although I still believe कि लाबुशेन डाल दे या फिर देख लाबुशेन तो चलो इन्होंने टीम से भारी कर दिया, बट जो इनका एक स्पॉट है ना स्टोइनिस और कैमरन ग्रीन वाला जो स्पॉट चल रहा था वहां पे दे हैव बीन इफी. नाउ दे हैव गॉन इन समवन विद मिचेल मार्श. मिचेल मार्श के 177 ट्रेमेंडस इनिंग्स, लेकिन भाई कहाँ थी इससे पहले कंसिस्टेंसी. आई नो आप एक सेटबैक से आ रहे हो, एक पर्सनल इशू से आ रहे हो, एंड देन यू हैव परफॉर्म. दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर योर टीम. लेकिन you cannot forget the fact कि आपका उससे पहले टूर्नामेंट बहुत ही बेकार रहा है. बहुत exactly. Coming on to the bowling यार, Zampa के अलावा विकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. If I will be talking about other teams, distribution of wickets दिख रही है. यहाँ पे Zampa is the leading वो wicket taker in the World Cup, I agree. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का है, बाकी प्लेयर्स कहाँ हैं? वही तो स्टार्क डेथ बॉलिंग अभी भी स्टार्क है. स्टार्क फर्स्ट 10 ओवर्स में स्टार्क जैसा नहीं दिख रहा मेरे को पूरे वर्ल्ड कप में. स्टार का स्टार्टिंग में नहीं दिखाई कि भाई मिचेल स्टार्क नहीं. डेथ ओवर स्टार्क बीइंग भाई चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंसेस, पावर प्ले फर्स्ट 10 ओवर्स लूजिंग द एज.
एग्जैक्टली वही एक पॉइंट है कि मुझे वो बार बार कंसिस्टेंटली इन बॉलिंग नहीं दिख रही। इफ तू देखेगा ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अभी ये शीट भी देख रहा था ऑन द लीडिंग विकेट टेकर्स, एडम जैम्पा इज द फर्स्ट वन इन द नेम, एंड उसके बाद 15 बंदों की लिस्ट में यू डू नॉट हैव एनी अदर सेकंड ऑस्ट्रेलियन बॉलर। अंडरस्टैंडेबल, और ना ही आए तो अच्छा। नहीं, एंड दिस इज द पॉइंट कि यू आर नॉट नॉट टू द बेस्ट, आप एक बंदे पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हो। क्या अगर Exactly. उसको किसी एक बैट्समैन ने पकड़ लिया जाम्पा को, जो साउथ अफ्रीका तो बहुत अच्छे से करती है पकड़ेगा जाम्पा को, पकड़ेगा हाँ पकड़ेगा हाँ मिलर अगर का हाथ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, लुक आउट फॉर मिलर इन द सेकंड हाँ सेकंड मतलब सेमीफाइनल। लेट्स डिस्कस दैट इन साउथ अफ्रीका, लेकिन हाँ, जाम्पा पे बहुत रिलायंस है आपकी, बट आपकी स्ट्रेंथ भी जाम्पा है, यू कैन नॉट फॉरगेट। एग्जैक्टली। इंडियन पिचेस है, एंड अब लेट इंडियन पिचेस है, लेट हम्म, टूर्नामेंट की इंडियन पिचेस है, ना स्पिन बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी। जाम्पा इज अ क्लेवर बॉलर, ही माइट बी द guy So according to your me. threat is Zampa, My threat and like opportunity is also opportunity. Zampa. मतलब हम्म, Zampa is going to be a key. If Zampa goes all in, आप मैच जीत रहे हो, and अगर Zampa exactly. पिटना स्टार्ट हो गया, then you are done. मेरे लिए तो कोलकाता की पिच ही इनका वो है थ्रेट, देखा जाए तो, क्योंकि Mhm. कोलकाता की पिच पे अगर इनके बैट्समैन को जो इनकी बैटिंग पावर्ड चीजें चल रही है ना, वो खरे की खरी रह सकती हैं उस दिन ईडन गार्डन्स में, सेकंड सेमीफाइनल जहां पर है। वहां चलो, पर अगर तुम्हारे बॉलर्स ने तुम्हें मैच नहीं जितवाया, तुम नहीं जीत सकते। I agree, I वहां agree. पर तुम्हें नहीं दिखेगा एक और मैक्सवेल की 200 नहीं दिख रही तुम्हें, वहां पर तुम्हें सेंचुरीज नहीं Exactly. दिखेंगी इतनी। And तुम्हें साउथ अफ्रीका टीम बैट्समैन, को हराना है, जो तुम्हें हरा चुकी है, and आड़े हाथों लेके हरा चुकी है, बहुत गंदा हराया था उसको भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So now coming on to the team, second team, South Africa, the team who finished second. एक टाइम पे लगा था कि दे माइट बी ट्रबलिंग इंडिया समहाउ फॉर द टॉप स्पॉट, लेकिन इंडिया और जब साउथ अफ्रीका गेम हुआ उसके बाद तो क्लियर हो गया कि दिस क्लियर टीम हो इज गया। नोवेयर नियर टू इंडिया। मतलब हम्म, उन्होंने अभी भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हराया था भाई, ऑल हराया है। सेड एंड डन। हम्म, वो अभी 2 ही गेम हारे हैं ना इस टूर्नामेंट में। हम्म, एक तो यू कैन स्टिल से कि वो गेम हो गई आगे पीछे करके, कि नीदरलैंड वाली गेम तुम हार गए, लेकिन चल ठीक है, यू स्टार्ट विद साउथ अफ्रीका, देन आई विल गो विद ऑन माय रैंट, कि अब रैंट तो माय नहीं, हाँ स्ट्रेंथ मतलब फॉर साउथ अफ्रीका हैज बीन द फैक्ट कि एक तो मेरे को टीम में थोड़ी सी पावर ऑफ फ्रेंडशिप दिखी है, जो मेरे को ओके। पावर फ्रेंडशिप हमेशा चाहिए होती है टीम्स के अंदर, वो मेरे को साउथ अफ्रीका में दिखी है। देयर प्लेयर्स हैव बीन रिलाइंग ऑन ईच अदर, देयर प्लेयर्स हैव बीन मोटिवेटिंग ईच अदर अ बिट। सो या, एंड भाई वो एक पर्सनल एक उससे खेल रहे हैं भाई प्रॉपर। तुम केशव महाराज की परफॉर्मेंस देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो उसने चौका मारा है, उस एक चौके में इतना इमोशन था ना आखिरी में, मतलब भाई अमेजिंग टू सी दैट। उनकी बैटिंग हैज बीन देयर स्ट्रेंथ, नो डाउट। मतलब साउथ अफ्रीका इज अ टीम दैट नीड्स टू, अगर तुम फोर्स बैटिंग करो साउथ अफ्रीका, यू गो फॉर इट। मेरे लिए वीकनेस वहीं पर ही है, वाइल चेजिंग दे हैव बीन लिटिल बिट इफी। थोड़ा सा उनको इनिंग्स पेसिंग में दिक्कत आई है, इनिंग्स कैसे संभालनी है, मतलब वो ये ना कि जब मारने की बारी नहीं आई तो क्या करेंगे, वो वाला कंफ्यूजन दिखता है मेरे को इनके पास। मतलब भाई डेविड मिलर जैसा बंदा, मैं तो बोल रहा हूँ डेविड मिलर का हाथ अभी भी इच कर रहा होगा, वो अपनी विकेट जडेजा को कैसे दे रहा है। लिटरली जडेजा कोहली हंस रहे थे उसके ऊपर कि तूने क्या ही आउट करवाया अपने आप को। सो दे अगेन देयर वीकनेस इज चेजिंग, देयर स्ट्रेंथ इज देयर फर्स्ट बैटिंग ऑब्वियसली। मीनवाइल चिराग, स्ट्रेंथ वीकनेस। See, if I have to talk about the strengths and weakness, ना simply said, if I am looking for strength in this team, जो तूने बोला कि जो मैं ऑस्ट्रेलिया में कह रहा था डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आई थिंक साउथ अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज एग्जैक्टली। नॉट जस्ट क्विंटन डिकॉक शो, दिस हैज बीन वैंडर ड्यूसन इक्वली, दिस हैज बीन क्लासन माइट बी, मतलब कहीं ना कहीं यू कैन से क्लासन आया है। मिलर के अलावा आई थिंक सब बैट्समैन ने कहीं ना कहीं खेला है अपना इनिंग्स, इवन एग्जैक्टली। हेनरीज आया था उसने खेल लिया। बबूमा, माकरम सॉरी, हम्म, बबूमा के बारे में ये एज इन द डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन की बबूमा क्या कब क्लिक करेगा, लेकिन बबूमा जिस दिन क्लिक करेगा उस दिन यू शुड बी और जस्ट सब वेटिंग एंड लोग। वाचिंग। हाँ। हाँ, यू शुड बी वाचिंग। बट एक और चीज जो मेरे लिए इनके लिए सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ थी, सी हम्म, एज आई हैव टॉक्ड इन यस्टरडेज वीडियो एज वेल, कि जब इनकी बॉलिंग के लिए मुझे लगा था टूर्नामेंट से पहले, जैसे कि नसीम शाह भी बाहर हुआ था, इनका भी एक प्राइम बॉलर बाहर हो गया है, इनके लिए क्या सेम सिचुएशन होगी, इन्होंने पाकिस्तान नहीं करा। दे हैव हम्म, गॉन विद अ सेट जहां यानसन और कॉड्जे ने रिस्पांसिबिलिटी उठाई, एंगीडी जॉर्ज रबाडा एग्जैक्टली। थे, कॉड्जे एंड एंगीडी ने इक्वली अपनी रिस्पांसिबिलिटी ली, एंड देयर या, रोटेशन एज वेल, कि कॉड्जे कब खेलेगा, शम्सी कब खेलेगा, दे हैव बीन परफेक्ट विद दैट, परफेक्ट विद somehow दैट। they have ट्रू, been perfect with that. उनकी ट्रू। पिच रीडिंग हैज बीन गुड, लेकिन पिच रीडिंग क्या मतलब कि तुम सिर्फ बैटिंग नहीं कर सकते हर जगह। यार एग्जैक्टली। बिगेस्ट वीकनेस मैं तो कह रहा हूँ टॉप 4 की अगर तू एक वीकनेस उठाएगा ना किसी भी एक टीम की, मोस्ट हाईलाइटेड, दैट इज हम्म, साउथ अफ्रीका। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जितनी जैसी टीम है, जैसे उनका कैरेक्टर होता है ना ऑस्ट्रेलियंस का,
पिच में कुछ लिखा हो, पिच कह रही हो कि भाई तुम्हें पहले बैटिंग करनी ही चाहिए कुछ सॉरी पहले बॉलिंग करनी ही चाहिए, तुम्हें पहले बॉलिंग करके तुम 10 विकेट ले लोगे 50 रन में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहेगी नहीं साउथ अफ्रीका तू बाद में ही बैटिंग करेगी, या कुछ होता है दैट इज गोइंग टू हैपन अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत रही है तो। एंड ठीक है यार, साउथ अफ्रीका ने चेज करते हुए गेम जीते 1-2, लेकिन वो वीकनेस बहुत हाईलाइटेड है इंडिया के अगेंस्ट, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, इवन पाकिस्तान वाला गेम तो केशव महाराज वाला उनके बैटिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक होता है ना पैशन वगैरह मोटिवेशन जो होता है चेज करने का, वो नहीं दिखा मेरे को बिल्कुल भी। तमीज से चेज नहीं करी उन्होंने स्कोर्स मेरे हिसाब से। हाँ मतलब दे हैव नॉट बीन अमंग द बेस्ट चेजर्स, एंड वो आपको कहीं ना कहीं हिट करेगा, दैट इज द थ्रेट फॉर यू गाइस। वीकनेस तो यार आई विल स्टिल से कि यू हैव टू शो मोर इन द in both the departments equally when it comes to chasing as well. चेज करते हुए आपके प्लेयर्स के शोल्डर्स गिर जाते हैं कि भाई अब क्या होने वाला है। एक जो रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स होती है ना, जो एक बीच में व्हाट डू यू से द एंकर बैट्समैन नहीं दिख रहा मुझे इस टीम में। केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ नहीं है इस टीम में जो आपको लास्ट तक कैरी कर सके, या फिर आपको एक बंदा जो खड़े करे। ठीक है यार, पीपल विल नेम वैंडर डूसन है या फिर ये है, लेकिन आई हैव नॉट सीन दैट व्हाइल चेजिंग फ्रॉम देम। दैट हैज बीन माय अगर मतलब या तो आपका लक ही इतना अच्छा हो कि आप दोनों गेम में चेज ही ना करो, अगर आप फाइनल खेल रहे हो कि आप दोनों गेम में चेज ही ना करो रादर, या फिर आपका लक इतना बुरा निकले कि आपको दोनों में से एक गेम ऐसी फंस जाए जहां आप चेज कर रहे हो एंड आप एक सामने वाली टीम को मतलब एक इजी कॉन्टेस्ट दे दो टू विन। एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग। दैट इज ट्रू, now coming on to the main team, that is going to be India. मतलब strengths so we have to, we all know, लेकिन playing 11 anything on playing 11 is the strength. playing 15 not playing 15 not playing playing 15 but the squad, the whole squad भाई 16 मैं कह रहा हूं प्रसिद्ध कृष्णा भी डाल दो, प्रसिद्ध कृष्णा भी डाल दो। पावर ऑफ फ्रेंडशिप बोल रहा था ना, अनएक्सपेक्टेडली या फिर एक्सपेक्टेडली सबसे ज्यादा पावर ऑफ फ्रेंडशिप दिखी इंडिया में है भाई। उस पावर ऑफ फ्रेंडशिप ने अलग ही गेम जितवा, अलग ही कंपटीशन चल रहा है। तुम लोग देख लो फील्डिंग के अंदर भाई सूर्य कुमार जडेजा रेस कर रहे हैं कि मेरे को ज्यादा अच्छा मेडल चाहिए, मेरे को अच्छा मेडल चाहिए, मैं रुकूंगा बॉल, मतलब भाई इनसेन मूड। The power of friendship that this team is showing is absolutely amazing. Every person trusts each other, every person knows their role, and no egoistic performances has been seen. That's the absolute beauty of this team, in my opinion. मतलब देख, if I have to sum this up ना, इस टीम ने फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग दिखा दिया पेपर पे टीम स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है। Exactly. जो पेपर पे ये टीम है वो परफॉर्म कर गई। हमेशा दिस टीम हैज बीन द बेस्ट ऑन पेपर, इस बार ये इन्होंने दिखा दिया व्हाई वी आर द बेस्ट ऑन पेपर। ये पेपर का मतलब क्या है कि मतलब स्टैट्स क्या होते हैं, एंड एग्जैक्टली द रिस्पांसिबिलिटी ईच गाय हैज टेकन। एग्जैक्टली रोहित शर्मा स्टार्टिंग की भाई मुझे 100 रन नहीं चाहिए अपने, मुझे चाहिए कि मैं ऐसे इंपैक्ट मार दूं कि टीम खेल जाए। स्टार्टिंग के 200 ओवर में तरह से खेल लो कि 40 ओवर तक गेम टुक करके खेल लो तो भी दिक्कत नहीं है। हां तो भी मेरे बॉलर्स जिता देंगे, अकेले जिता देंगे मेरे पावर प्ले के रन। एग्जैक्टली। प्लीज एनीबॉडी हु इज वाचिंग द वीडियो टिल हियर, तुम मुझे कमेंट करके बताना कितनी टीमों ने इंडिया के पावर प्ले से कम रन मारे हैं इंडिया के अगेंस्ट। श्रीलंका विलंका तो होंगे ही होंगे, बहुत टीमें मिल जाएगी, एक दो और मिल जाएंगी। मतलब मैं तो वही मेरे को सुन रहा था, नीदरलैंड्स हैव बीन शोइंग द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक उससे अच्छी बैटिंग इंडिया के नीदरलैंड्स ने नहीं करी है भाई मेरे लिए आफ्टर न्यूजीलैंड। हाँ बट कमिंग ऑन टू द इंडिया की स्ट्रेंथ्स भाई, द रिस्पांसिबिलिटी मैं बोला रोहित ने रिस्पांसिबिलिटी ले रखी है, विराट कोहली ने रिस्पांसिबिलिटी ले रखी है टू प्ले टिल द एंड। कुछ हो जाए वो लास्ट तक खड़ा रहेगा भाई बंदा। 3 नॉट आउट्स 99 के एवरेज इज समथिंग यू शुड बी ऑल बोइंग डाउन एंड रिस्पेक्टिंग। 99 के एवरेज अभी और 2 मैचेस और बचे हैं उसके, तो अभी वो तो और मारेगा। उसके बाद यू हैव केएल राहुल, द बेस्ट नंबर 5 यू कैन हैव। उसने ऑस्ट्रेलिया में टुक टुक करके दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एंड उसने लास्ट वाली गेम में तुम्हें मार के दिखा दिया कि फास्टेस्ट 100 मार दिया वर्ल्ड कप का और अपने इंडिया के। भाई केएल राहुल एज अ विकेट कीपर एंड द डीआरएस वाला बंदा हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। आई थिंक फील्डिंग मेडल्स को मिले हैं, कीपिंग कैचेस इतनी ज्यादा ब्रिलियंट। आई थिंक कैच ऑफ द टूर्नामेंट बन सकती है भाई वो चीज, जो उसने एक हाथ से कैच पकड़ी है। वो 0.7 रिएक्शन टाइम है उसका, 0.7 सेकंड रिएक्शन टाइम है उस चीज का भाई। And coming on to these batting, India की batting has been still overshadowed by this bowling. इतनी तारीफ पिछले 3.5-4 मिनट की तारीफ करने के बाद bowling has overshadowed this batting. Exactly. कोई बॉलर बोल दे, तो कोई बॉलर बोल दे जो खेला है इंडिया के लिए इस बारी, they have been magnificent भाई, the way they have played. Beautiful. हार्दिक पांड्या बाहर हुआ, लेकिन हमें सूर्य और शमी में 2 बैट्समैन हम 2 प्लेयर लाने पड़े, लेकिन शमी कहता भाई रुको, तुम्हें दिखाता हूं बॉलिंग क्या होती है। बॉलिंग कैसे हो एग्जैक्टली भाई, द सीम लेंथ, द वेरिएशन भाई, मूवमेंट्स पे विकेट निकालना, बैट्समैन को सेटअप करना भाई, शमी भाई ने तो फाड़ दी भाई, फाड़ दी। The way he got Ben Stokes, the way he got wickets, and भाई 5-4-4-5 की क्या ये स्टैट्स है विकेट लेने की।
कम ऑन यार, मतलब दिस वो इज द अलग ही वे फुटबॉल यू, कहता भाई मैं लीडिंग विकेट के लूंगा आते ही, और वो भाई हाँ, दिस इज गजब नॉट है गजब। हैट्रिक टाइप्स, वो उससे भी ऊपर की बातें चल रहा है, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली। तीन विकेटें ले रहा हो बस फुटबॉल की। चलो कमिंग ऑन टू द स्ट्रेंथ, एंड मैं कह रहा हूँ अभी तो तुमने पोटेंशियल, कुलदीप जडेजा ने तो एक मैच में फाइवर लेके दिखा दिया, कुलदीप तो कहता है मुझे बॉल तो दो, डालने भाई तो कुलदीप दो। यादव की जब बॉल दी है, मैं भाई बी बीइंग एन अश्विन स्टैन स्टिल सेइंग कुलदीप यादव शुड बी प्लेइंग इज अ बिग हाँ स्टेटमेंट इन भाई, इटसेल्फ। भाई उसने जो रूट की विकेट थी वो, ये कौन सी विकेट थी जब उसने वो जो मैं बहुत सेंचुरी बोल रहा था उस दिन, जो उसके अंदर बोल्ड मारा था लेग भाई स्टंप वो पे, बहुत ज्यादा प्यारी बॉलिंग है भाई, दैट इज ऑफ स्टंप की बहुत बॉल लेग प्यारी स्टंप बॉलिंग। पे लगी थी, जो भी थी हाँ वो हाँ हाँ, मतलब भाई। गजब। That has to be India's strength. That talking about weakness, मतलब maybe there is no weakness after 9 out of 9 domination things. I'll say weakness मुझे नहीं दिखी इस टीम में. The इंजरी only player तू इंजरी मानेगा नहीं, इंजरी भी वीकनेस का हुई हमारी पूरे टूर्नामेंट में, अगर अगर हम रिव्यू अब करते हैं अगर प्लेइंग 11 में थ्रेट, हुआ तो वो थ्रेट हाँ, थ्रेट हुआ, वो थ्रेट हुआ। थ्रेट हुआ कि थ्रेट में भी यू कैन से कि एक थिंग जो हमने मे बी अंडर द रेडार जा रही है, मैंने उसका जिक्र भी करा अभी, हार्दिक पांड्या। हम्म हमें एक सिक्स्थ बॉलर बहुत खल सकता है एक गेम में, इफ हमारा एक भी बॉलर गलत जाता है तो यू हाँ नीड अ सिक्स्थ बॉलर। आपने ट्राई कर लिया विराट कोहली, लेफ्ट आर्म, सॉरी राइट आर्म राइट रॉन्ग आर्म फुटेड इन स्विंग मैंने मैंने, सॉरी that is not the guy to come in. I do not believe so. But coming on to the other thing, I'll say कि threat could be one thing. सबके अच्छे दिन चल रहे हैं जो सब चीजें बोल रहे हैं कि क्या बुरा दिन आएगा, बट माई आंसर टू दैट इज मेरे लिए वो थ्रेट नहीं है। आई जस्ट नहीं से है। भाई सबके बुरे दिन आ चुके हैं, 9 आउट ऑफ 9 के बाद भी। तुम हर कोई एक गेम उठा के देख लेना, तुम देख लेना एक के एग्जैक्टली। बुरे दिन तुम रोहित का देखो, विराट का देखो, सबके आ चुके हैं। सो आई डू नॉट गो अभी ऑन तक दैट। बट ये हुआ है कि रोहित विराट का साथ में बुरा दिन नहीं आया है, हाँ दैट मतलब इज ऐसे समथिंग। नहीं आया तो ऑस्ट्रेलिया गेम, पहली गेम। विराट कोहली था तो सही, हाँ विराट छोड़, लेकिन स्टिल मतलब यू कैन से कि राहुल हैज टेकन दैट टेकन दैट मेंटल एंड या आई ओनस। थिंक यार। और अभी भी सूर्य कुमार यादव भी बैठा है कि मेरे को एक इनिंग तो दो, मैं दिखाऊंगा मैं क्यों बैट्समैन हूं। मैं तो बोल रहा हूँ वो अपॉर्चुनिटी का वेट, जैसे मिलर वेट कर रहा है साउथ अफ्रीका के लिए, वैसे सूर्य कुमार वेट कर रहा है इंडिया में कि एंड तुम भाई। कह रहे हो ना गिल इज द ओनली गाय जिसने 100 नहीं मारी अभी तक, मतलब हाँ रोहित ने भी 100 नहीं मारी ना इस टूर्नामेंट में, लेकिन ही हैज दैट हाँ इम्पैक्ट एंड एवरीथिंग। लेकिन हम्म, गिल इज वेटिंग कि भाई तुम फाइनल में, तुम अहमदाबाद बताओ, बता तुम प्लेग्राउंड क्या होता है, मैं तो तुम्हें हमने दिखाऊंगा तो मैं वर्ल्ड प्लेग्राउंड कप से क्या। पहले ही शोर मचा रखा था, अहमदाबाद गिल वो होगा। हाँ एग्जैक्टली। और एंड भाई बुमराह हैज नॉट बीन मतलब विकेट टेकर्स, जिस दिन उसका दिमाग फिर गया, मैं कह रहा हूँ बुमराह को ना पहली बॉल पे जाके चौका मार दिया करो, तो जो भी सामने वाली हाँ टीम वो मार दिया करो, फिर वो मार नहीं दिया करो, छोड़ेगा उसके तो बाद वो देख लेगा। फिर वो फुटबॉल खेलेगा तुम्हारे वो होता साथ। है ना स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो हमें यहाँ देख लोगे, आपको उसके बाद कौन देखेगा, वो बुमराह करेगा फिर कि तूने पहले और चौका मार दिया, देखो अब कौन बचेगा देखो। सीरियसली। एंड फिर जो वो गुस्सा सिर्फ बुमराह नहीं, सिराज आके निकाल देता है, फर्स्ट टर्न पे शमी कि निकाल बुमराह को किस देता है चौका भाई। मारा तूने। हाँ बट मैं ओनली थ्रेट में बता चुका हूँ, द 5 बॉलर्स वी आर प्लेइंग विद, छठे बॉलर तुम्हें कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं मे बी द 8th बैट्समैन जहां तुम्हें मे बी जरूरत पड़ जाए। ऑल्दो आई बिलीव कि हम टॉप 7 इतना हेवी है कि हम निकाल लेंगे, बट दैट इज व्हाट आई बिलीव। सो this was all the analysis from us, everything I'll say कि हो गया मतलब जितना हमें लगा था for all the 4 teams. Quickly Shreyansh, what are your predictions for both the semi-finals? uh, what do you think is going to be the, who is going to take the first semi-final and the second semi-final? You know both the, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। okay, you're going with India and South Africa, India and Mumbai and South Africa and Kolkata. I am Kolkata। going with India versus Australia final. I ओके believe so. This is going ओके। to be India Australia final. स्टोरी लाइंस के लिए यार, सेमीफाइनल में तो न्यूजीलैंड को हराओ, 2019 फाइनल्स का में बदला लो, ऑस्ट्रेलिया और मेक सेंस। फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया में 2003 का बदला लो। दैट इज व्हाट यू कैन डू। चलो, मेक सेंस। see you guys in the next video. Do comment your opinions on each team. What do you think हमारी क्या एनालिसिस थी, and what is your analysis over the things. मिलते हैं in the next video. Until then, see you. Bye bye.